Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this 11th lecture of digital image processing. Today we will learn the concept of image enhancement and also learn the first technique of image enhancement, that is histogram equalization. In this lecture we will learn that what is image enhancement and what are the two broad categories of image enhancement. And we will start the first technique of image enhancement, that is histogram equalization. So we will learn that what is image histogram, what is image histogram equalization, and why we do histogram equalization, means what's the purpose of histogram equalization, and how to do histogram equalization. Okay, and at the end of lecture we will also learn that how to implement histogram equalization practically in MATLAB. Okay, so image enhancement is the process of making images more useful for a few purposes, like we want to highlight interesting details in the image, we want to remove noise from the image, we want to make images more visually appealing. Okay, for example, this is an image of MRI of human spinal fracture. So you can see that this image, the input image, has more darkness, and if we apply some image enhancement technique, then this darkness can be reduced, or this image can make more brighter. Okay, similarly here is another application from medical imaging. This is another application where the input image has low contrast and it is converted into high contrast image. Okay, here is another example. The input image is a noisy image of printed circuit board, and we want to enhance this image, and after enhancement we get this output image. Okay, image enhancement techniques can be divided into two broad categories. First kind of techniques belong to spatial domain category, and the second kind of techniques belong to frequency domain category. The main difference between these two broad categories is the spatial domain techniques manipulate image pixels directly, whereas the frequency domain techniques manipulate the Fourier transform or wavelet transform of an image. Okay, so spatial domain techniques like histogram equalization, gray level transformation, spatial filtering, etc., they are just like some particular functions which are applied on the pixels of image. Okay, and frequency domain techniques like frequency domain filtering is applied on the wavelet transform or Fourier transform of an image. Okay, so this is some brief introduction of image enhancement, and today we will start the first a technique of image enhancement, that is spatial domain technique, and that is histogram equalization. Okay, so in order to learn the histogram equalization concept, first of all we will learn that what is image histogram. Okay, so image histogram is just like a two-dimensional graph which represents the frequency of occurrences of each intensity level in the image. Okay, so you can say the histogram shows us the distribution of intensity levels in the image. Okay, for example, against this image, this is the histogram. You can see here this is a gray level image, and you know that in gray level image the gray levels are from 0 to 255. Okay, so 0 to 255 gray levels are represented along x-axis of this graph, whereas
the number of occurrences of each intensity level is represented by this y-axis. Okay, so you can see here the first few intensity levels are approximately you can say 0 here, whereas in middle from you can say from 60 to 130 or 20 like intensity levels are have more occurrences in this image. So and similarly you can see here this number of occurrences of each intensity level along this x and y axis graph. Okay, so you every image has some histogram. For example, you can see this image histogram here. Okay, so what is image histogram equalization? Spreading out the intensity level frequencies in an image, making its histogram more evenly spaced. Okay, it means के आपने for example ये एक आपका input image की histogram है और we want to equalize this histogram. Equalize का मतलब ये है कि इसमें जो intensity levels हैं आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ इवनली स्पेस्ड या इक्वली स्पेस्ड इंटेंसिटी लेवल्स नहीं हैं, जबकि ये जो हिस्टोग्राम है आफ्टर इक्वलाइजेशन, इस हिस्टोग्राम में जो इंटेंसिटी लेवल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इवनली है, मींस के वो कुछ इक्वली है और इसकी वजह से इस इमेज के अंदर कंट्रास्ट इंक्रीज़ हो जाएगा. ये इसका पर्पस ये है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का कि हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की मदद से इमेजेस में कंट्रास्ट को एनहांस कर सकते हैं, कंट्रास्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पुअर कंट्रास्ट इमेज है हमारे पास और ये इसकी हिस्टोग्राम है, और अगर हम इस इमेज के ऊपर जो है वो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई करें तो ये एनहांस्ड इमेज हमें मिलेगा और ये इसकी हिस्टोग्राम होगी. आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि इस इमेज की जो हिस्टोग्राम है इसकी निस्बत ये जो इक्वलाइज्ड ये जो एनहांस्ड इमेज है इसकी हिस्टोग्राम जो है वो दैट इज़ मोर इवनली स्पेस्ड. ओके, इसमें जो है इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, यानी कि अगर 256 लेवल्स हैं 0 से 255 तक, 256 ग्रे लेवल्स हैं, तो हर ग्रे लेवल की ये जो अकरेंस है अगर उसको गौर किया जाए तो इनकी आपस की जो अकरेंसेस हैं उनका कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, जबकि यहाँ पे अकरेंसेस का डिस्टेंस है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से जज करें 0 से 55 और 60 तक जितनी भी ग्रे लेवल्स थे उनकी अकरेंसेस ना होने के बराबर थी. ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से ये दरमियान में कुछ ग्रे लेवल्स की अकरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद अगले ग्रे लेवल्स की अकरेंसेस जो हैं वो कम होती जा रही हैं. ओके, तो यहाँ पर जो है वो ग्रे लेवल्स की अकरेंसेस, ग्रे लेवल से मुराद ये इंटेंसिटी लेवल्स, तो इंटेंसिटी लेवल्स की जो है वो जो हमने बात की थी उनकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं या इंटेंसिटी लेवल्स की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो ज़्यादा स्प्रेड हुई हुई हैं यहाँ पर. ओके, इस इमेज की निस्बत, इस इमेज के हिस्टोग्राम की निस्बत यहाँ पर जो ये हिस्टोग्राम है एनहांस्ड इमेज की, इसमें जो अकरेंसेस हैं, जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं इंटेंसिटी लेवल्स की, वो ज़्यादा स्प्रेड हुई हुई हैं और आपस में जो है वो एक इवनली स्पेस्ड हैं. तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो इमेज है ये मोर एनहांस्ड है. इसका मतलब ये भी हुआ कि जितना इवनली हिस्टोग्राम जो है वो उसकी अकरेंसेस इवनली स्पेस्ड होंगी उतना ज़्यादा जो है वो इमेज के अंदर कंट्रास्ट होगा. तो इन शॉर्ट हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन is used for contrast enhancement purpose. ओके, हम यहाँ पे मज़ीद देखते हैं कि why we use histogram equalization. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डार्क इमेज है. ओके, तो आप देखते हैं कि इसकी हिस्टोग्राम में आपको शुरू के लेवल्स पे यानी जो डार्कनेस के करीब हैं 0 से 255, ये डार्कनेस से हम जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे आगे जाएं तो ये ब्राइटनेस की तरफ जा रहे हैं. ओके,
तो इसमें जो हिस्टोग्राम जो रिप्रेजेंट की हुई है उसमें शुरू के जो ग्रे लेवल्स हैं उसकी अक्रेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और बाद में ना होने के बराबर हैं, ओके। जबकि ये इसके टोटली ऑपोजिट इमेज है, ये ब्राइटर इमेज है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है इमेज इसमें, यानी लाइट बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं यही वजह है कि ये आखिरी जो ग्रे लेवल्स हैं उनकी अक्रेंसेस हैं और शुरू के ग्रे लेवल्स की ना होने के बराबर हैं, ओके। ये एक और इमेज है, इसमें ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत डार्क हैं, बल्कि दरमियान के ग्रे लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, एंड इट्स अ लो कंट्रास्ट इमेज, ओके। तो इसके बाद हम इसको देखते हैं, ये एक हाई कंट्रास्ट इमेज है और हाई कंट्रास्ट होने की वजह से अगर आप इन चारों इमेजेस को कंपेयर करें तो इस हाई कंट्रास्ट इमेज में आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ओके। इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। ये इन्हांस्ड इमेज है, ये हाई कंट्रास्ट इमेज। और अगर हम इसकी हिस्टोग्राम पे गौर करें तो इसकी हिस्टोग्राम जो है वो इन तीनों हिस्टोग्राम्स की निस्बत ज़्यादा इवनली स्पेस्ड है, ओके। सो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू डू हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक सिंपल सी एप्लीकेशन ली है। एक जस्ट एज्यूम करें कि इमेज जो है वो 5x5 का इमेज है, यानी इमेज की जो है 25 पिक्सल्स हैं टोटल, ओके। आल्दो के इमेज जो है वो आमतौर पे इतना छोटा नहीं होता और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये ग्रे लेवल इमेज है और ग्रे लेवल के अंदर जो है वो इल्यूमिनेशन के लेवल्स जो हैं वो 256 होते हैं। लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्सेप्ट को मैंने एक सपोजिटरी कॉन्सेप्ट लिया है कि आपका इमेज जस्ट एज्यूम करें 5x5 का इमेज है, एक शॉर्ट सा इमेज है और पॉसिबल ग्रे लेवल्स जो हैं वो जस्ट 8 हैं, यानी 0 से लेकर 7 तक हैं, ओके। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा इनपुट इमेज है और हमें कहा जाता है कि इसकी हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन करनी है, ओके। तो इसकी हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हिस्टोग्राम फंक्शन कैलकुलेट करना होगा फॉर ईच इंटेंसिटी लेवल। हमने देखा कि हिस्टोग्राम क्या होती है कि जो ये बताती है कि हर इंटेंसिटी लेवल की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें हिस्टोग्राम फंक्शन कैलकुलेट करें फॉर ईच इंटेंसिटी लेवल, हेयर इंटेंसिटी लेवल कितने हैं 8, 0 से लेकर 7 तक। So k is equal to 0 to 7 is representing intensity level, okay. So we have to calculate the histogram function for each intensity level, means h of rk, where rk is representing input image, you can say input image intensity level, okay. तो इसको हम n of k के ज़रिए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n means number of occurrences, okay. So the number of occurrences for each intensity level means nk is equal to histogram function for each intensity level which is h of rk is equal to हम मालूम करते हैं for each intensity level, okay. तो सबसे पहले हम लोएस्ट इल्यूमिनेशन लेवल जो है हमारा यानी 0 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर हम 1 by 1 तमाम इंटेंसिटी लेवल के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 की एक अकरेंस, यानी हमने यहाँ से देखना शुरू किया, तो 0 की एक अकरेंस, ये दूसरा 0 हमें मिला इस इमेज के अंदर देखते देखते, फिर ये तीसरा 0 मिला, फिर चौथा 0, ठीक है। देन ये दिस इज़ द 5th वन, 6th, 7th, 8th। तो इट मीन्स के अब ये इमेज कंप्लीट हो गया, हमने तमाम ज़ीरोज़ इसमें देखे, तो इट मीन्स के इस इमेज के अंदर 8 ज़ीरोज़ हैं, ओके। सो इट मीन्स द इंटेंसिटी लेवल 0 हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 8, या यू कैन से द histogram function for intensity level 0 is 8, okay. Similarly, we have to calculate the histogram function for other intensity levels. तो अभी हमने 0 का देखा, अब किसकी बारी है, अब हम 1 का देखते हैं, ओके। सो पहला 1 इस इमेज में तलाश किया तो ये मिला, दूसरा 1, फिर जो है ये तीसरा 1 होगा, ठीक है, फिर ये चौथा 1, इसके साथ इमेज कंप्लीट हो गया। इट मीन्स के इल्यूमिनेशन लेवल 1 की अकरेंस जो थी वो 4 थी।
So histogram function for illumination level 1 is 4. ओके अब हम 2 का देखते हैं 1 2 3 तो 3 जो है इसमें अक्रेंसेस हैं illumination level 2 की. सिमिलरली 3 को देखते हैं 1 2 इसकी 2 अक्रेंसेस हैं. 4 को देखते हैं 1 2 इसकी भी 2 अक्रेंसेस हैं. 5 को देखते हैं 5 की कोई अक्रेंस नहीं है. ठीक है तो हम जो है वो इसको हिस्टोग्राम फंक्शन जो है कैलकुलेट किया 5 का तो आंसर जो है वो 0 आया. देन 6 को देखते हैं 1 तो इसकी सिर्फ एक अक्रेंस है. देन 7 को देखते हैं 1 2 3 4 5. ओके तो हमने तमाम इल्यूमिनेशन लेवल्स को देखा और उनकी अक्रेंसेस हमने मालूम की. ये अक्रेंसेस इनफैक्ट हिस्टोग्राम कहलाती हैं. तो पहला स्टेप क्या है कि हमने हिस्टोग्राम फंक्शन कैलकुलेट किया फॉर ईच इंटेंसिटी लेवल. ओके अब ये जो हमने 5x5 के इमेज में हिस्टोग्राम फंक्शन कैलकुलेट किया फॉर ईच इंटेंसिटी लेवल उसको हमने यहाँ पे लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप जो है उसके लिए हम ये भी देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितनी है बिकॉज द इमेज इज़ 5x5 सो द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आर 25. ओके तो स्टेप नंबर 1 क्या था कि हमने हिस्टोग्राम फंक्शन कैलकुलेट किया फॉर ईच इंटेंसिटी लेवल. स्टेप नंबर 2 है कि हमने नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम फंक्शन कैलकुलेट करना है फॉर ईच इंटेंसिटी लेवल. ओके नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम फंक्शन से मुराद ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इंटेंसिटी लेवल विद इन द इमेज. तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी कि उस इंटेंसिटी लेवल की अकरेंस मीन्स n ऑफ k या यू कैन से h ऑफ r k divided by n where n is total number of pixels in the image. Okay so the normalized histogram function for illumination level 0 is equal to क्योंकि इसकी occurrences 8 थी 8 divided by 25 is equal to 0.32. Okay similarly for occurrence 1 its normalized histogram function value is 0.16 because 4 divided by 25 is equal to 0.16. Similarly we calculate the normalized histogram function for each intensity level. Okay step number 3 you have to calculate the intensity transformation function. Okay so the formula for calculating intensity transformation function for each intensity level is कि आपने normalized histogram function या यूँ कह लें कि जो probability calculate की थी तो the sum of all intensity levels which are less than or equal to this intensity level. Okay for example t of r0 का आंसर जो है वो simply p of r0 होगा. लेकिन t of r1 का आंसर क्या होगा the sum of all intensity levels which are less than or equal to this intensity level. Okay means t of r1 का मतलब होगा p of r0 plus p of r1. Similarly t of r2 का मतलब होगा p of r0 plus p of r1 plus p of r2. Okay तो आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि t of r0 is equal to p of r0 but t of r1 is equal to t of r0 plus p of r1. ओके अब चूँकि t of r1 में आपने ये दोनों को जमा कर दिया तो फिर अब इन तीन के सम के अगेंस्ट आप ये भी कह सकते हैं कि t of r2 is equal to t of r1 plus p of r2. ओके सिमिलरली हम कह सकते हैं t of r3 is equal to t of r2 plus p of r3 and so on. ओके तो हम देखते हैं कि हमारा पहला जो प्रोबेबिलिटी थी जो पहला नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम फंक्शन था पहले इंटेंसिटी लेवल का 0.32 था. तो इट मींस कि t of r0 इज इक्वल टू 0.32 वेयर एज t of r1 इज इक्वल टू 0.32 प्लस 0.16 दैट इज 0.48. अच्छा अब जो पिछला सम है मींस t of r1 0.48 उसमें जो नई प्रोबेबिलिटी है p of r2 की वो हम ऐड कर देते हैं t of r1 में p of r2 तो 0.48 प्लस 0.12 इज इक्वल टू 0.60. ओके तो अब ये आखिर में जाके इसका सम जो है वो 1 ज़रूर आना चाहिए. ओके तो इस तरह से हमने इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन जो है वो कैलकुलेट कर लिया. सो आई रिपीट
In order to do histogram equalization, we have to do some steps. Okay, the first step is to calculate histogram function for each intensity level. The second step is to calculate normalized histogram function for each intensity level, and the third step is to calculate intensity transformation function T for each intensity level. Okay, and the fourth step is given here. Okay, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया. ओके, द फोर्थ स्टेप ये है कि आपके पास जो इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन आया है ईच इंटेंसिटी लेवल के अगेंस्ट. देखें यहाँ पे 8 इंटेंसिटी लेवल दिए हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो हर किसी के अगेंस्ट सबसे पहले उसका हिस्टोग्राम फंक्शन, फिर उसका नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम फंक्शन, फिर उसका इंटेंसिटी लेवल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन. ओके, तो ये जो इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन का आंसर आया है उसको मैक्सिमम इल्यूमिनेशन लेवल्स के आपने मल्टीप्लाई कर देना है. तो हमारे इस केस में क्या एजम्पशन थी कि 0 से लेकर 7 तक इल्यूमिनेशन लेवल्स हैं, तो मैक्सिमम इल्यूमिनेशन लेवल नंबर इज 7. ओके, सो 7 मल्टीप्लाइड बाय टी ऑफ आर के. ओके, सो अगर हम 0.32 को 7 से मल्टीप्लाई करें द आंसर इज़ 2.24. इसी तरह 0.48 को 7 से मल्टीप्लाई करें आंसर इज़ 3.36 एंड सो ऑन. हमने इन तमाम को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, ये है फोर्थ स्टेप. ओके, फाइनल स्टेप ये है कि ये जो फाइनल नंबर आए हैं आपने इनको राउंड कर लेना है. ओके, सो राउंडिंग 2.24 is 2, rounding 3.36 is 3, rounding 4.2 is 4 and so on. ओके, आपने इन सबको राउंड कर लेना है. ओके, तो ये तो हो गए 5 स्टेप्स. आई रिपीट, स्टेप नंबर 1 टू कैलकुलेट हिस्टोग्राम फंक्शन फॉर ईच इंटेंसिटी लेवल. Step number 2 to calculate normalized histogram function for each intensity level. Step number 3 to calculate intensity transformation function for each intensity level. Step number 4 to multiply maximum level number with intensity transformation function. And step number 7 to round the last answer. Okay, and the last step is कि आपने वो जो हमारा इनपुट इमेज था उसमें जो इनपुट इमेज में जो लेवल इल्यूमिनेशन लेवल नंबर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ जहाँ पे 0 था आपने उसे इस 2 के साथ रिप्लेस करना है. ओके, इसी तरह से 1 को आपने 3 के साथ रिप्लेस करना है, 2 को आपने 4 के साथ रिप्लेस करना है, 3 को 5 से रिप्लेस करना है, तमाम 4 जो थे उनको 5 से रिप्लेस करना है, 5 को 5 से, एंड 6 से ये अनचेंज्ड होगा बिकॉज हमारे इस आंसर जो है ये इनपुट के अगेंस्ट इल्यूमिनेशन लेवल था और यहाँ पे जो है वो हमारा हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में होने वाला लेवल है. ओके, तो चलें इस प्रोसेस को करते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारा इनपुट इमेज था. सबसे पहले 0 को देखते हैं. तो मैंने यहाँ पर तमाम ज़ीरोज़ जो हैं आपकी आसानी के लिए उनको हाईलाइट किया हुआ है. तो इट मीन्स कि हमें 1 बाय 1 इन तमाम ज़ीरोज़ को जो है वो 2 से रिप्लेस करना है. ओके, सो हमने इन तमाम ज़ीरोज़ को 2 से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, अब इसके बाद जो बच गई हैं वैल्यूज़, यानी इन 2 को तो आप छोड़ दें, जो भी हमने रिप्लेस किया इनको छोड़ दें आप, बाकी जितनी वैल्यूज़ बच गई हैं उनके लिए भी हमने यही प्रोसेस इसी तरह से अप्लाई करना है. मीन्स द नेक्स्ट इल्यूमिनेशन लेवल इज़ 1, तो हमने 1 के अगेंस्ट चेक करना है कि 1 कहाँ पे है उन वैल्यूज़ में जो बच गई हैं. ओके, तो ये 4 जगह पे 1 है, हमने इन तमाम चारों जगह पे 1 की जगह पे 3 करना है. ओके, ये 3 हो गया. नेक्स्ट हमने 2 को फाइंड आउट किया, जो वैल्यूज़ बच गई हैं उनमें 2 यहाँ पे अवेलेबल है. अगेन जो वैल्यूज़ बच गई हैं उनके अंदर 2 यहाँ पे अवेलेबल है. ओके, तो हमने इन तीनों जगह पर 2 को 4 से रिप्लेस करना है. ओके, तो ये 4 से रिप्लेस हो गया. अब 3 को देखें, जो वैल्यूज़ बच गई हैं उसमें 3 कहाँ पे है, 1 2. ठीक है, इन 2 जगह पे 3 है, तो इसकी 2 अकरेंस थी. ठीक है, इन दोनों अकरेंसेस की जगह पे आपने इसे 5 से रिप्लेस करना है. इसी तरह से जो वैल्यूज़ बच गई हैं उनमें इन 2 जगह पर 4 था, आपने इस 4 को इस 5 से रिप्लेस करना है. ओके, देन 5 की कोई अकरेंस नहीं थी, जो वैल्यूज़ बच गई हैं उनमें कोई अकरेंस नहीं थी, तो ठीक है कुछ नहीं करना. 6 की अकरेंसेस थी, एक अकरेंस थी ये वाली,
but this will be unchanged because here again 6 is written, so 6 will be replaced with 6 means it will be unchanged. Okay, तो इसी तरह से 7 will be replaced with 7 means it will be unchanged. Okay, the process is completed means now this image is enhanced image. Okay, तो ये हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन हो चुकी है और उसके बाद हमें इमेज मिला है. सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन. ओके, यानी अगर आपका ये इनपुट इमेज था तो हमने वो अपने स्टेप्स के ज़रिए से जो भी हमने किए उनको अप्लाई करके हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन कर ली. ओके, सो दिस इज़ द वे वी डू हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन. एंड फाइनली हाउ टू इम्प्लीमेंट हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन इन मैटलैब. ओके, तो मैंने यहाँ पे इसका कोड लिखा है. सबसे पहले हमने एक ब्राउज़ और रीड किया इमेज को. एक इमेज जो है वो ब्राउज़ करके हमने लिया और उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया. ठीक है, आफ्टर कन्वर्टिंग इन ग्रे स्केल हमने उस पर हिस्ट ई क्यू, सो रिमेंबर हिस्ट ई क्यू का फंक्शन जो है वो अप्लाई किया. हिस्ट ई क्यू का फंक्शन जो है वो आपके जो इमेज है उसकी हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन कर देगा और हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन के बाद जो इमेज आएगा वो जो है वो इसको असाइन कर देगा. इट मींस कि वो जो लो कंट्रास्ट इमेज था हमारा उसकी हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन हुई और उसके बाद जो है वो हाई कंट्रास्ट के नाम से हमने एक वेरिएबल लिया, उसको हमने वो एनहांस्ड इमेज असाइन कर दिया. अच्छा, अब हम जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए अपने इनपुट इमेज को और आउटपुट इमेज को दोनों को शो करना चाहते हैं अलॉन्ग विद देयर हिस्टोग्राम्स. तो इट मींस कि हमें अपनी स्क्रीन को 4 हिस्सों में डिवाइड करना होगा. सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे टाइलिंग कर दी सब प्लॉट की कमांड से 2 रोज़ और 2 कॉलम्स में. और पहले हिस्से में अपने इनपुट इमेज को हमने शो किया, दूसरे हिस्से में हमने जो है वो इनपुट इमेज की हिस्टोग्राम यानी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी हिस्टोग्राम को शो किया, और तीसरे हिस्से में जो है हमने एनहांस्ड इमेज जो हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन के बाद आया उसको शो किया और फिर उसके बाद जो है वो उसकी हिस्टोग्राम को शो किया. और फाइनली अगर आप जो है वो कंट्रास्ट एनहांस करने के बाद इमेज को उसी फोल्डर के अंदर एक दूसरे नाम के साथ सेव करना चाहते हैं तो imwrite की कमांड लगा के उस आउटपुट इमेज को हमने सेव कर दिया. यहाँ पे कॉन्कैटिनेट किया है उसी पाथ के साथ इस नए फाइल के नाम को और फिर एक स्ट्रिंग बन गई. ये एग्जैक्टली डेस्टिनेशन पाथ मिल गया हमें फाइल के साथ, फाइल नेम डेस्टिनेशन फाइल नेम मिल गया हमें, और इस फाइल के ऊपर जाकर जो है ये हाई कंट्रास्ट जो वेरिएबल में इमेज है ये जाकर सेव हो जाएगा. इट मींस कि आपने एक लो कंट्रास्ट इमेज को एज एन इनपुट लिया, उस पर हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन अप्लाई की थ्रू हिस्ट ई क्यू फंक्शन. ठीक है, और फिर जो आउटपुट आई वो आपने उसी फोल्डर के अंदर एक हाई अंडरस्कोर कंट्रास्ट के नाम से जो है वो .png के नाम से इमेज में आपने सेव कर दिया. ओके, जब आप इस कोड को रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप जो है वो विंडो अपीयर हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था अपनी स्क्रीन को. ये इनपुट इमेज था लो कंट्रास्ट इमेज, ये उसकी हिस्टोग्राम थी, और ये हमें आउटपुट इमेज मिला आफ्टर अप्लाइंग अपने हिस्ट ई क्यू कमांड इन मैटलैब. तो उसकी जो है वो एनहांस्ड इमेज की यानी इस इमेज की जो है ये हिस्टोग्राम है. ओके, सो दिस इज़ ऑल. Thank you.